last episode, we were talking with Shreyans Mittal about his national biking record and other endurance challenges. Let's continue that, shall we? अच्छा एक बात बता फिर now that you have gained more experience, right? Uh, you've already broken a record. You've you know completed a couple of challenges from IBA as well. Now, what's your this thing? What's your thought process? Like, do you think safety gear is essential, or do you think it's? I mean, you one can have it, or they might choose It not is to a have it. must have it. It's a must have it. Because somewhere from psychological perspective, you are well covered. Hmm. So इसका मतलब ये नहीं है जाके कि जबरदस्ती ठोक दो वो नहीं Hmm. करना है बट लेकिन हाँ साइकोलॉजी कि at those speeds at continuous riding you would be safe in case anything happens. एंड वो भी था कि देखो जब तक एवेंजर थी आई नो 80-100 की स्पीड पे जाती है 110 मैक्स जाती है आई नो उतना स्पीड हो जाता है नाउ विद दिस बाइक विच हिट्स अप टू 150 160 मुझे पता है कि यार अपने को उतना सेफ्टी रखना पड़ेगा नो मैटर व्हाट्स योर कंट्रोल बट देन अगर कई बार वो सिचुएशन आ जाती है तो उस चक्कर में फिर मैंने कहा यार सेफ्टी गियर्स होना जरूरी है एंड because the kind of roads and the kinds of rides I've started doing more endurance small long distance तो उस चक्कर में सोचा यार रख लेते हैं बट हाँ इसमें ये भी होता है फिर बॉडी उतनी टायर्ड भी हो जाती No, है तो you फिर get उसके lighter लिए armors. You get lighter armors. So there are D3O armors which are pretty light compared to traditional like like normal armors that you get with all the mostly the local manufactured राइट jackets and all, right? D3O है वो it's called some elasto something, I forget. Like it basically is soft and pliable, but once you hit it, it holds its form. It becomes very hard, ओके right? So if you have a this thing, what do you call? If you have an elbow guard, it'll be when you're riding, your arms are in this position, right? So it will flex with your elbow. But the moment there is an impact, right, it'll become hardened, right? So at that time, it will protect your elbow, right? अग्रीड Sastek also does this. It's called viscoelastic. Now I remember. It's called ओके viscoelastic, right? Old age man, I'm telling you, age is catching up. अब सब भूल जाता we हूँ need बीच to go for a ride again बीच we need to go for a actually. ride again let's refresh the memories Yeah, exactly. So, so viscoelastic is a good technology, right? And most modern armors and all, they basically come in that category of armors, right? Sastec is one, I think they're a German brand, if I'm not mistaken. right D3O is also an European brand. Not sure which country it's from. So, so what you can do is you already have a jacket. You don't need to buy a new jacket. You can buy these armors off of any bike store, or you can buy them online also. Don't buy it from Amazon. Chances are नकली ही नहीं मिलेंगे. दे देगा Orange color करके हाँ वो दे देगा सिर्फ. So हाँ better get it from a reputed bike store or something like that. And I think Royal Enfield is coming up with a few jackets which has D3O armors, if I'm not mistaken. ओके नाइस So ये हो तो गया. लेट्स सी हाँ, so और देख दो तीन चीजें तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा. फिर से ज्ञान दे रहा हूँ, पर जनरली आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर वेलबींग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. दो तीन थैंक चीजें यू तो मैं ब्रदर बोलूंगा. हेलमेट एक प्रॉपर चाहिए. स्टड स्टील बर्ड पहन के ये लॉन्ग डिस्टेंस मत किया नहीं करो. वो नहीं करता इसके वो हेलमेट चेंज हो चुका है हाँ. तो मिनिमम एट अ मिनिमम अगर स्टड और स्टील बर्ड और वेगा वेगा इसी का लेना है तो इस इन लोग के एक एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल रहता है. जैसे आई थिंक वेगा राइट का एक्सॉर है, स्टील बर्ड का एसएमके है. एसएमके से एक्सॉर इज बेटर एक्चुअली. तो राइट एक्सॉर का अगर कुछ मिल जाता है तो एक्सॉर ले लो, ठीक है. रेटिंग्स देख लो ईसी सर्टिफाइड है कि नहीं. So you can buy those if budget is a criteria. If budget is not a criteria, then go for empty helmets. Pretty good, ओके low budget. I mean, low budget as in like not compared to the local brands, but lower budget compared to some of the other premium brands and all. Right. I generally use an AJC, right, which is a Korean brand, ओके and they make MotoGP helmets and all, right, and these helmets are pretty good. So AJC is like a bit cheaper among the premium brands. And then you have the AGVs and Shoeis and Schuberts of the world where
wherein helmet can cost you around 30 to it can go up to around Hmm. 1.5 lakhs also, depending on which model you Right, buy. right. So, So the good news for you, buddy, hmm, is that right now, as you said, right, I have almost all the top brands with me for my riding thing. Though अच्छा I'm not going to take their name until unless they provide me the sponsorship, इसलिए मैं अच्छा नाम नहीं लूंगा. अच्छा But right now, from riding boots to elbow to the jacket which I'm wearing right now in this damn hot, but ठीक है स्टाइल आ रहा है. फिर उसके बाद नी पैड्स हो गए, हेलमेट हो गया, everything is covered in that way. So yes, as you go higher up your passion on your this thing, then you become more mature. You understand the choices you make, उसका impact क्या आएगा. तो वो सब ध्यान रखते हुए वो सब मैंने इस स्पेशली जीक्यू से पहले मैंने वो सारा प्रोक्योर किया था. It took me what around 1.5 months to decide, test, try, and then find the right set of things for me. So thanks to you for your guidance, मैंने वो सब कर लिया है. अच्छा और एक चीज मैं बोलूंगा एंड दिस इज फॉर ऑल द न्यूअर राइडर्स राइट Hmm. एंड आई वाज सरप्राइज टू लर्न दैट नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस बहुतों को इसके बारे में पता नहीं है सो पहली बात तो बहुत लोग विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हैं गाड़ी एज इन लाइक बाइक Right. चलाते हैं Hmm. उसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना सर ही नहीं रहा तो घंटा बाकी सेफ्टी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता Hmm. Hmm. पर जो लोग हेलमेट भी पहनते हैं Hmm. वो प्रॉपर फिट नहीं पहन प्रॉपर Right. फिटिंग हेलमेट नहीं पहनते दैट्स अनदर प्रॉब्लम एंड पुलिस से बचने के सेकेंडली लिए वो सिर्फ. Hmm. और अभी क्या होता है कि मॉडर्न बाइक्स हैव बिकम प्रीटी फास्ट राइट like I'm Right. talking about like the performance bikes like 200 above 200 cc commuter Right. bike Right. Right. बाइक्स की बात नहीं बता रहा Hmm. हूँ तो उसमें क्या होता है when you're driving or riding really long distances ये constant wind noise से ना you can Hmm. develop a condition in your ears called tinnitus Okay. राइट जहां पर एक श्रिल whistling साउंड सुनाई You देता can है always हमेशा hear. राइट एंड इट्स अ Hmm. परमानेंट हियरिंग डैमेज Right. राइट यू कैन नॉट undo द डैमेज फ्रॉम tinnitus Hmm. राइट Hmm. 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 तो उसके लिए what you should do is there are earbuds that you can get right Right. noise cancelling earbuds just Hmm. भैया उसको डालो ठीक है it's not Hmm. gonna cut off ambient noise entirely but it's gonna reduce the Exactly. decibels reduce the Hmm. decibels to sort of permissible level so that Hmm. your hearing is not affected क्या होता है कि Right. generally our ears can work properly and if you basically blare a constant sound of Hmm. like 65 decibels Hmm. anything beyond that right 65 is like that's where the damage starts from but Right. 65 के कम अगर around 50 तक भी अगर है तब भी ठीक है but generally wind Hmm. blast जब होता है तब around it goes up to around 65 to 70 Hmm. right. Now that is extremely harmful for your ears, especially your eardrum, Definitely. right? Definitely. तो भैया मतलब इस चीज को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए सिर्फ सिंपल दो ईयरबड्स लगाओ यू कैन रीयूज इट अगर गंदा भी हाँ हो इसका जाए हो वो गया वैक्स अपने लग से. जाए धो के उसको यूज कर सकते हो ईयरबड्स नहीं यूज I करो definitely would. Even I always use cotton earbuds in my ears when I'm riding. अभी जब ये GQ मारा था I installed in windshield, right? And windshield जो wind blast आता है, it comes direct to your ears. And believe me, it was close to around 80 to 85 decibels. हाँ बट वही ये था मेरे को रेस करनी थी, वो मेरी बॉडी को थकने से बचा, तो मैंने उसे चलने दिया. देन फाइनली आई रिमूव्ड इट व्हेन आई रीच दिल्ली. सो फॉर न्यू राइडर्स, आईज नोज एंड ईयर्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट. टेक वॉट एवर इट टेक्स टू टेक केयर ऑफ देम. ठीक है भाई, उनको संभाल के रखने का है, नहीं तो फिर राइडिंग में मजे नहीं ले पाओगे अगर आवाज सुनना कम पड़ गया तो. हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे ना पूरा गियर के ऊपर ठीक है एकदम ऊपर से लेके नीचे तक एकदम पूरा गियर्स के बारे में बात करेंगे परफेक्ट. generally a lot of biking channels are there right don't want to take any particular names and all so they do cover this topic in great depth and everything but it's mostly about what is a particular product and how does it protect you what I want to राइट. do is I just want to sort of maybe make the users aware as to why you should do one thing, right? ठीक है एग्जैक्टली. लोग परफेक्टली सेड. मोस्ट लोगों को इतना पता तो है कि हेलमेट से सर बचता है ठीक है हम्म. पर सर क्यों बचता है ठीक है हाँ ठीक है सर फूटेगा नहीं ठीक है हम्म. पर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है कैसे एक्सीडेंट में आपको हम्म. हेलमेट बचा लेगा कैसे एक्सीडेंट में हम्म. हेलमेट नहीं बचाएगा
ठीक है। ये जैसे मैंने चलो ईयरबड्स भाई के रुक बारे में जाओ, हम लोग टेनाइटिस के देखो बारे में बता अपन रहा यहाँ हूँ। ट्रैवल की बात करने आए हैं भाई, अपनी जो अपनी कहानी भी बाहर निकाले। हाँ मतलब बहुत रुको हो गया रुको रुको सीरियल रुको बात। रुको, पहले अपनी कहानी के पहले, ओके। पहले जीक्यू की हाँ। बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा। 19 के बाद से भैया कोविड बाबा जी का प्रकोप आ गया। अरे मत पूछो भाई। ठीक है, फिर अपना जीक्यू हाँ। जीक्यू का प्लान कब बना? जीक्यू। तो हाँ, सो GQ इज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सो एज यू नो इट स्टार्ट मतलब अपने मेट्रोपॉलिटन को कनेक्ट करता है, मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली मुंबई। एंड वो पूरा एक हाईवे नहीं है भाई, बहुत सारे छोटे छोटे मोटे मोटे हाईवे उसमें जुड़े हुए हैं। एंड द डिस्टेंस इज क्लोज टू अराउंड 5,980 किलोमीटर्स, and running through some of the most beautiful places, some of the most dangerous places, some of the places, सब कुछ है। सो प्लान वाज 2016-17 से चालू हो गया कि भाई नेशनल रिकॉर्ड तो बनाना है, बिकॉज व्हेन यू मूव अहेड इन योर पैशन, तुम्हारा वो पैशन और कोर होते जाता है, फिर उसके लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। सो पहले मैं अटेम्प्ट मारने की सोचा तो कोस्टल राइड मारूंगा 7 दिन में 7,000 किलोमीटर। मैंने कहा ये तो आसान ही तो हो जाएगा। बट देन अगेन अब नौकरी वाले हैं हम लोग, तो छुट्टी इतनी मिलेगी नहीं, तो प्लानिंग बन नहीं पा रही थी। मैं कहा लेट्स ट्राई GQ, 3.5 दिन की रेस है, 1-2 दिन की छुट्टी लूंगा हो जाएगी। सो बस वो फाइनल हो गया, GQ करना है। एंड फिर पॉइंट वाज, चैलेंज वाज टफ मैन। मतलब जो जिसने मेरे से पहले रेस मारी, ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब एंड ही हैज कवर्ड दैट इन 87 आवर्स 42 मिनट्स। दो ही एंड ही वाज यूजिंग अ ब्यूटीफुल बाइक एज वेल, ट्राइम ट्रिपल एस। एंड मैंने कहा चलो, इंडिया के रास्ते ऐसे, तुम्हारे पास बाइक कितनी भी अच्छी हो, तुम एक लिमिट से ऊपर जा नहीं सकते। इट ऑल कम्स टू द राइडर, हाउ ब्यूटीफुली यू कैन मैनेज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। One second, one quick interruption. When you said triple S, did you mean like street triple? ट्राइम ट्रिपल एस। या। Triple, well, it's street triple, right? या माइट बी। Huh, okay, huh. Go ahead. So he did with that, and and that guy Shobit, I'll take his name now. So that guy was, as I me, I just, the beauty thing the thing I like about biking is there's a certain kind of brotherhood among us bikers। मतलब हम लोग हेल्प करने को तैयार होते हैं, कोई भी अपने पास आएगा न्यूबी पुराना जिसको हेल्प चाहिए, सब लोग देने तैयार होते हैं। उस बंदे ने काफी हेल्प की। ही टोल्ड मी अबाउट द रूट्स, उसने बताया उसने क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या प्लानिंग की, एंड समवेयर ही गाइडेड मी जस्ट लाइक माय 2016 जहाँ मेरे फ्रेंड प्रशांत ने मेरी हेल्प की थी। बस उनसे बात हुई तो मैंने कहा चल ठीक है, अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं मारनी है, कब मारनी है वो डिसाइड करना था। एंड फिर मैंने सोचा था 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मैंने अप्रैल में प्लान बना लिया था कि हाँ आई एम गोइंग फॉर अ रेस। अब कोविड आ गया, उस टाइम तक इतने लॉकडाउन भी इतना मेजर था नहीं, बट मैंने कहा यार रिस्क क्यों लेना, बिकॉज द प्लेसेस आई एम गोइंग टू गो थ्रू वो थोड़े पिछड़े इलाके हैं, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगी, नहीं तो मैं फैला नहीं चाहता था। 2020 कैंसिल हुआ, फिर मैं 21 में फिर दोबारा मार्च में प्लान बनाया, फिर कैंसिल हुआ, फिर देन 2022 में आई फाउंड एन ओपनिंग कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ। सो आई गेस बाय दिसंबर और जनवरी आई वाज फाइनल कि हाँ अब मैं GQ कर रहा हूँ और मार्च में ही कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड प्लानिंग। So it was right about proper time. बारिश नहीं है, ज्यादा ठंड नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है। एग्जैक्टली Okay. एग्जैक्टली। सो दिस आर सर्टेन काइंड ऑफ प्लानिंग यू हैव टू मेक, बिकॉज कुछ रूट जो मैं ले रहा हूँ कोस्टल वाले रूट है, बरसात के बाद रोड खराब होती है, एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months फॉर द कंप्लीट रिपेयर एंड पैच वर्क टू फिनिश। ठीक है, तो उस समय क्या है कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये रेस नहीं मार सकते जहाँ पर कोस्टल एरिया आता है। तो उस चक्कर में बस फिर वही एक बैंडविड्थ बचती है फेब टू मार्च अप्रैल तक। एंड उसी में मेरे को देखा कि हाँ मार्च इज शूटिंग टाइम भी है, दिवाली होली भी आ रही थी, तो मैंने कहा जो सब कुछ मिक्स हो रहा है, लेट्स गो ऑन दैट। अच्छा, एक बात बता तो, टोटल कितना जीक्यू का, ये टोटल जो 4 मेट्रोज जो कनेक्ट करता है, तो जीक्यू हैव हम्म। एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट, बट हम्म। ये टोटल जो डिस्टेंस है कनेक्टिंग द 4 मेट्रोज, ये कितना है? हम्म। तो 5,950 और 60 किलोमीटर। अच्छा, और हम्म। प्रीवियस रिकॉर्ड कितने घंटों का था? 87 आवर्स 42 मिनट्स। ओके, और तूने कितने घंटे में किया? 87 आवर्स 13 मिनट्स। ओके, एंड तो बीच में रेस्ट कितना लेना पड़ा? अरे यार रेस्ट का तो ऐसा था कि आई गेस आई हैव स्लेप्ट फ्रॉम अराउंड 4.5 आवर्स ऑफ स्लीप आई हैव टेकन। मतलब पहले दिन आधे घंटे लिया, फिर 1 घंटा लिया, फिर 1 घंटा लिया, फिर 15-15 मिनट की छोटी छोटी नींद वैसे लेते हैं और चलता रहा। ये रिस्की नहीं है क्या लगता है? और डू यू नो योर बॉडी सो वेल दैट यू कैन मैनेज इट? बॉडी, सो आई नो माई बॉडी, सो मतलब
तो एक चीज मैं कहता हूँ हमेशा कि जैसे हमारे आइंस्टीन साहब थे, उनका कहते हैं कि ही वॉज अ पर्सन जिसका 10% ब्रेन काम करता था, नहीं राइट? नहीं, नॉट जनरली ह्यूमन। वो बकवास है, दैट्स बीन डिबंक्ड। चल ठीक है ना, तो मैं, मेरे को ज्ञान देना मजा आता है, सुनना है। अच्छा, तो एग्जांपल दे रहा है, जनरली नॉर्मल ठीक है, ह्यूमंस तब का, दे सकता है, हाँ, तब दे सकता है, हाँ हाँ, बता। तो नॉर्मल ह्यूमंस का 1 से 2% काम करता है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन्स वर्क टिल लाइक एब्सोल्यूट 20-30%। और मैंने रियलाइज किया वो आपका हर चीज में काम नहीं करता, वो कुछ ही चीज में काम करता है, राइट? तो मेरा वो बाइकिंग है, जहां पर मेरा ब्रेन 100% फोकस रहता है, काम नहीं करता बात अलग है, लेकिन फोकस 100% राइडिंग पे रहता है। एंड दैट चेंजेस द गेम। मेरी बॉडी उस तरीके रेस्पॉन्ड करती है। जो थकान होती है, प्रेशर होती है, जो एक बंदे को 100 किलोमीटर की होगी, वो मेरे को जाके 1000 किलोमीटर पे होगी। जो नींद मेरे एक बंदे को, जो 1 घंटे की नींद में कोई बंदा 100-150 किलोमीटर चला लेगा, मैं उतना वो 400 किलोमीटर चला लूंगा। सो दैट्स हाउ द यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड इन दैट सेंस। सो बेसिकली माइंड ओवर मैटर तू बता रहा है, राइट? एग्जैक्टली, इट्स ऑल द गेम ऑफ द माइंड। एक बात बता, हम लोग जब पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे तो बताया था कि आखिरी के few hundred kilometers में you are hallucinating and everything, right? वो एपिसोड थोड़ा बता क्या हुआ था। सो वो पूरी पूरी कहानी आएगी फिर उसके साथ। हाँ बता ना, टाइम है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। तो ये है, एक्चुअली क्या था, मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था यार। मतलब दिल जयपुर तक मैं उतना टाइम पे था, सो आई वाज ट्राइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड विद इन 84 आवर्स। उस समय बिल्कुल टाइम पे था, आई वाज डूइंग गुड। फिर जयपुर से अजमेर पहुंचा, दैट टू आई वाज इन राइट टाइम। जयपुर से मैंने उदयपुर के गलत रूट ले लिया था। एंड उसका वैसे स्ट्रेट हाईवे अच्छा हाईवे है, और वो जो रूट मैंने लिया था वो साला था सिंगल लेन। एंड विद सिंगल लेन विद मल्टीपल स्पीड ब्रेकर, सामने गाड़ी आ रही थी, एंड बाय दैट टाइम मेरी हेलमेट की विंडशील्ड बहुत गंदी हो चुकी थी, दिख भी नहीं आता बहुत क्लियरली। सो मेरी स्पीड वो हो गई, एंड बाय द टाइम आई कंप्लीटेड स्ट्रेच, वो 150 किलोमीटर स्ट्रेच था, विच कॉस्टेड मी अराउंड 3-3.5 आवर्स। तो उसमें बहुत ज्यादा थक गया था निकलते निकलते, और वैसे भी थका हुआ पीछे चल ही रहा था, लेकिन माइंड फ्रेश था इसलिए मैं भगाया जा रहा था। लेकिन वहां पर एक गंदा टूटा। फिर वहां पर एक ढाबा पकड़ा, उसमें एक टेबल पड़ी थी, मैंने भाई सो जाऊं क्या? दान सो जाओ। लोग बड़े हेल्पफुल हैं अपने इंडिया के। मैं बस वहां पर टेबल पर सोया। 1 घंटे बाद आँख खुली, मैंने चलो अब चलते हैं। अब क्या था, एक चैलेंज और था। एक उदयपुर से अहमदाबाद का एक बेटर रूट है जो सीधा जाता है। अब मेरे को जाना था, नहीं सॉरी, उदयपुर से मुंबई जाने के लिए एक रूट है वाया गोधरा होते हुए, दैट इज अ वेल कार्व्ड रोड। अच्छी रोड है जाने का। मेरे को कि अहमदाबाद से होते हुए जाना था, बिकॉज वो मेरे उस लिस्ट में था। तो उसके लिए जो मैंने रूट लिया वो फिर पीछे पीछे से गया, एंड उसमें भी अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत हाईवे था, डाइवर्जन थे, पुल बन रहे थे। तो उस चक्कर में और थकान हो गई। अब तीसरा चैलेंज आया अहमदाबाद से वडोदरा। तो बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन एनी वन, राइट? नेशनल एक्सप्रेस वन। तो उसके लिए एक रूट इन्होंने अच्छा बना रखा है अहमदाबाद से वडोदरा का, मैंने उसको भी स्किप कर गया, मैं गलत रूट पे चल गया। वो 4 लेन हाईवे बट कंप्लीटली अंदर सिटीज। अब वो 110 किलोमीटर के साथ में मेरा और टाइम गया। एंड नाउ क्या था, फॉर मी टू कंप्लीट द रेस विद इन टाइम, और ये जो इतना मैं टाइम मैंने लॉस्ट किया, मेंटली स्ट्रेस आया, डिमोटिवेशन आया, वो सब आते आते आई वाज जस्ट फोकस ऑन राइडिंग कि यार मेरे को एक बार वडोदरा पहुंचना है। और उस चक्कर में मैंने रात से लेकर सुबह तक कुछ खाया ना पिया, बस मैं चलाए जा रहा था, थोड़ा रेस्ट ले रहा था, जहां भी थक रहा था आंखें बंद के सो रहा था, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं। तो जब मैं जैसे वडोदरा में एंटर किया, खुशी तो बहुत हुई, लेकिन आई गेस डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, उसने मेरा दिमाग का फोकस हिल गया। तो मतलब लिटरली ये फीलिंग थी, आई वाज ऑन बाइक, एंड जैसे वो होता है ना एकदम यूरेका मोमेंट आता है, अरे हो गया। वो यूरेका मेरा ये है, मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने देखा बाइक चल रही है, सड़क पे आंखें थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर बाइक चल रही है तो कुछ तो कर रहा हूँ मैं चल थोड़ी देर चलाते फिर सोचूंगा क्या कर रहा हूँ। फिर वो हिट ही नहीं आया क्या कर रहा हूँ मैं। फिर मैं राइट साइड में रुका, नारियल पानी पिया, चाय पिया। उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद याद आया, हाँ मैं नेशनल रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए रेस कर रहा था और मुझे मुंबई पहुंचना है। बट उसके बाद भी पिक्चर धुंधली थी कि यार ठीक है पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे कर रहा है, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा अभी छोड़ते हैं, अभी निकलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो फिर अपना फोकस आया, चलना शुरू हुआ, एंड देन आफ्टर आई गेस 1 और 1.5 आवर्स मेरे को समझ में आया मुझे करना क्या। सो यस, दैट इंस्टेंस वाज समथिंग, पुअर प्लानिंग कह भी सकते नहीं कह सकते, बिकॉज प्लानिंग डजंट ऑलवेज वर्क। बट हाँ ये था कि हाँ वो सिचुएशन आता है जब एक स्ट्रेस लेवल आता है वेर यू टेंड टू लूज योर फोकस। बट इवेंचुअली तो बाहर निकल ही गए थे उससे। हाँ, उसको माइक्रो स्लीप बोलते हैं एक्चुअली, चलाते चलाते हम्म। दिमाग सो जाता है, पर कैसे? मोटर स्किल्स काम करेंगे थोड़ा बहुत, राइट? हम्म। कुछ अगर कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हो तो योर बॉडी वुड कीप ऑन डूइंग इट, एंड देन सडनली राइट। यू विल बी इन योर सेंसेस एंड अरे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ,
सो इन राइट, दिस यू डोंट लूज योर फोकस ऑन द रोड, आपका रोड से फोकस नहीं हटता है, बट देन अगेन आपका एकदम माइंड अलग तरीके से काम करता है. करेक्ट, सो इट करेक्ट। डजंट, आई गेस आई डोंट फेल्ट लाइक कि यार मैं डिसबैलेंस हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं कैसे चला रहा हूँ, वो सब मेरा प्रॉपर था. बट ये याद नहीं नहीं नहीं, आता वो मैं कर क्या रहा था. डिसबैलेंस से दारू पीने से होती है, बाकी कुछ से। Yeah, and never drink and drive, guys. यू कैन स्मोक एंड ड्राइव, बट नॉट ड्रिंक एंड Uh, not, and even you don't drink and ride too. ड्राइव। या, हाँ, can't पुलिस believe I वालों ने said कंफ्यूज that। कर रखा है यार, ड्रिंक एंड ड्राइव कहते हैं, क्यों ड्रिंक एंड राइड भी तो होता है ना, नहीं, डोंट हाँ, ड्रिंक एंड राइड टू. एंड प्लीज, बिफोर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड बिफोर सेइंग लाइक नो नो मैं तो कंट्रोल में रहता हूँ, हर पियक्कर वही बोलता है भाई, तू कुछ अरे नया नहीं गाड़ी है। आती है ना, बाइक चलाएगा दो पैक के बाद. वही वही वही, हर पियक्कड़ का वही डायलॉग है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होता, बाकियों को होता है भाई, बख्शो, मत चलाओ। ये ये पॉइंट तो है. अग्रीड. ठीक है, मैं जनरली, मेरा जब ये है ना, मैं जब यूएस में रहता था तो यहाँ तो पुलिस को हाँ. सभी ऊपर वाले की कृपा है। हाँ. बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। आजकल हम्म. सोशल मीडिया पे कमेंट पे बहुत लोग एजिटेटेड हो जाते हैं किसी भी इस पॉइंट पे। एनीवेज, हम्म. पता नहीं कौन ऑफेंडेड हो जाएगा, ठीक है। अभी पुलिस के बारे में कुछ बोलूंगा, पुलिस मंडली पूरा ऑफेंडेड हो गया तो जान पे बनाएंगे। नहीं यार, एनीवेज, पुलिस अच्छी भी है अपनी. नहीं नहीं, अच्छी हम्म. तो है। मैं वही बता रहा हूँ, हम्म. कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस उठा के मैं बात करूंगा ना, तो पूरी हम्म. पुलिस कम्युनिटी पीछे पड़ जाएगी कि भैया तुम पुलिस को बदनाम कर रहे हो। पुलिस को नहीं बदनाम कर रहा हूँ, एक पुलिस वाले को बदनाम कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में एक एग्जैक्टली. अंतर है। नेवरदलेस, अंतर है. तो बाहर का हम्म. बोल रहा हूँ, बाहर में व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन द यूएस, राइट, तो मेरा जो हम्म. दोस्त है, उसका नाम था हम्म. एहतेशाम। लाइक फॉर हम्म. रिलीजियस रीजंस वो दारू नहीं पीता था, ठीक है। ओके. तो हम लोग जब भी पार्टी में जाते थे, वो ऑफिस कोलीग था मेरा, हम लोग जब पार्टी में हाँ. जाते थे, मैं बोलता था एहतेशाम आज मैं गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ, चल तेरी गाड़ी में कारपूल करेंगे। और हाँ, आ जा, सही बिंदास है. आ जा। हाँ. और वो क्या है, बंदा बहुत सोशल था, वो पार्टी के एंड तक हाँ. रहेगा, पर पिएगा नहीं। ओके. सही बात. तो मेरे लिए भैया एकदम वो तो गॉड सेंड। ठीक है, हम लोग पी के टोल, हाँ भैया एहतेशाम घर छोड़ दे। और तो उसका घर भी एकदम ऐसा था कि पहले उसको मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाके उसका घर पहुंचेगा वो, ठीक ओ, है। ओके. सही है. सो एली के एकदम पूरा एंट्रेंस पे मेरा घर था और एंड में उसका घर था। ठीक है, हाँ. बच गए भाई। ठीक है, तो गाइस इससे क्या समझ में आता है, दोस्त थोड़े बहुत ऐसा बनाओ जो नहीं पीते हो, ड्राइव कर पाते हो. ठीक है. एग्जैक्ट। हम्म. तो वही है। सही है. नेवरदलेस, तो बिफोर वी गेट टू आवर दिस थिंग, so we are already close to an hour. I ओके. think ओ I मैन. think I think our interaction, I'll hold that off for our next episode maybe. हम्म. But before we do that, and before we conclude the session today or podcast हम्म. today, हम्म. just a quick thing, right? So, what was the feeling when you realized that you had just broken the national record? Like, सेटिस्फेक्शन में. ये मत बोल, उस टाइम पे जब रिकॉर्ड तोड़ा था, did you have, हम्म. were you in your senses to even acknowledge or realize what you had done, or did it take a while for it to sink in, like maybe the following morning or something? Because at that time, I would imagine that you were completely and extremely tired, right? कुछ नहीं तो, प्रोसेस करने के लिए भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, इसकी स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग है. हेयर वेयर माय मॉम एंड डैड कम्स इनटू पिक्चर. सो हम्म, मुंबई से 60 किलोमीटर पहले मैं हार मान चुका था. अच्छा, ठीक है. मैं लिटरली मुंबई से, आई वाज, ये जैकेट नहीं, वो हैवी थी एंड आई वाज सो डैम टायर्ड. मैंने कहा भाई मैं जैकेट पहन ही नहीं सकता, मेरी बॉडी चीख रही थी कि भाई इसको उतार, रुक जा. तो उस टाइम पे वैसे 60 किलोमीटर पहले मैं अपना कहीं जैकेट उतार के बैठ गया, चाय वाय, मैंने कहा भाई मेरे से ना हो पाए, अब मैं बाद में देखूंगा, बिकॉज एक तो 84 आवर्स का टारगेट था, वो वैसे भी अचीव नहीं हुआ था. तो मैंने कहा अब अचीव करके फायदा भी क्या है, दोबारा अटेम्प्ट मार लेंगे. तो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, माताश्री मेरी द बिगेस्ट सपोर्टर इन बाइकिंग, एंड माई सिस्टर एंड माई फादर टू. तो उन्होंने कहा बेटा इतना कर लिया, एटलीस्ट कंप्लीट तो कर. मैंने कहा चलो ठीक है. देन मैं चला, तब तक मैंने फिर कहा यार जैकेट वैकेट तो नहीं हो पाए, बॉडी में दम नहीं है. मैंने आराम से जैकेट उतारी, बाइक पे ऊपर रखी, एंड विद ऑल द गियर्स मैं चल रहा था. गया पेट्रोल पंप पे, रिसिप्ट लिया, साइन लिया, फिर पुलिस वाले से ग्लास में आके 10,000 नाप के वहां साइन लिया. फिर जब मैं वापस आ रहा था, मैं बैठा, चलो मैं कहा चलो अब तो रेस तो खत्म हो चुकी ना, आई कैन रिलैक्स, मतलब, लेकिन वो टायर्डनेस नहीं थी.
वो टायर्डनेस उस टाइम पे उस फेज में जो थी ना, साइकोलॉजिकल टायर्डनेस, वो तब निकल गई थी। फिर मैं बैठा, मैंने देखा, अच्छा मेरा टाइम हुआ है 4:22। मैंने कहा तो मैंने टोटल कितना कर लिया? तो मेरे मॉम ने कहा बेटा तूने 47 आवर्स 13 मिनट्स में, 87 आवर्स 13 मिनट्स में कर लिया है। तो आई वॉज लाइक, अरे क्या हुआ, सॉरी। सो मॉम ने कहा कि यार तुमने अभी भी 87 आवर्स 10 मिनट्स या 13 मिनट्स में कर लिया है। मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या? मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया यार। मतलब आई वॉज डीमोटिवेटेड, किस तरीके मैं वहां पहुंचा, कर लिया, वेस्टिंग 1 आवर माई ऑन प्रेशर, वो सब। बट वो था, मैंने कहा चलो यार, दिस फाइनली एंड्स। एंड यस, इट इज अ बिग थिंग, इट्स अ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन फॉर माई पैशन कि वो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। बट देन अगेन इट वॉज जस्ट अ काम सेटिस्फाइड फीलिंग, नो नॉइज इन माई हेड, नो अदर थिंकिंग, बस आई वॉज सेटिस्फाइड कि यस, बिकॉज आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ, to prove it to myself, yes, you can go that length, you can be the best there is. तो तो ये था सर। तो अगले दिन जब सुबह को उठा, कैसे अगले दिन सुबह उठा कि उसके अगले दिन सुबह उठा, पहले वो बता। उसके अगले दिन नहीं, तो अभी क्या है ना, ये नेशनल रिकॉर्ड मारने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगले दिन हाँ। सुबह उठ के मैं ये सोच रहा था यार डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है। अब मेरे पास इतनी सारी पर्चियां हैं, इतनी सारी लॉग बुक में सिग्नेचर है, उसके बाद 50 चीजें और करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ गया तो एक दिन मैं रिलैक्स करूंगा। उस दिन मैंने ऑफिस से मैं 2 दिन की छुट्टी ली थी। मंडे को पहुंचा, ट्यूसडे छुट्टी ली थी, मंडे इवनिंग तक मैंने पहुंच के सोया हुआ। अगले दिन आराम से 12 बजे उठा और पढ़ा रहा पूरे दिन। क्या पता था अगले दिन ऑफिस भी तो जाना है, तो मैंने कहा छोड़ो इन सबको, अभी रेस्ट करते हैं, देखेंगे। सो मतलब इट डिडंट स्ट्राइक इट दैट मच कि यार हाँ कुछ बड़ा हुआ है, बट आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ, इफ आई से आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस राइडर, आई कैन ब्रेक द लिमिट्स विच एनीवन हैज क्रिएटेड। So that started my journey. सो एक बात बता, सो व्हाट्स द नेक्स्ट टारगेट, लाइक व्हाट्स ऑन योर माइंड, नेक्स्ट क्या है? So I have 5 more national records to break. All the एंड दे long आर distance two-wheeler category. One is north south, east west, coastal, trans Himalayan, and one more it was yeah, all states and UTs, all India. ओके। So these are the 5 records which I would be attempting in the next 1.5 years. इसमें से एक रिकॉर्ड मेरे डियर फ्रेंड प्रशांत चौधरी ने कर रखा है, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज वाला। ही कवर्ड व्हाट 16,000 समथिंग किलोमीटर्स इन 22 days. वाओ, ओके, So that's ग्रेट। the target. I can't even imagine that. That's good. Um, cool. So I think we covered quite a few topics today. I think just in the Definitely. interest of time, I think Hmm. we will just end our session here today. But we will Hmm. definitely carry this on, and in our next episode, we will talk Hmm. about few of your plans, and Hmm. also the interesting story about how we actually met, right? Oh under yes, under what definitely. circumstances, right? I think that's a story by Correct. itself. And people who Definitely. are members in the channel, or not members, I mean people who are like subscribers in the channel, they would have seen the videos, right? That's all I'm going to say about that. I'm not going to say which video or anything. The videos are already there on the channel, so if they go through some of the videos, they'll know which one I'm talking about. But nevertheless, chalo. So thanks everyone for joining, and big thank you to Shreyans for giving us his time. And till our next podcast, be safe, and I'll see you later. Bye. Thanks, Ed. Thanks for calling me on your show. All Thanks, the best, Shreyans. Matthew.